Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channels. So today I'm going to start the lead code problem number 85, that is maximal rectangle. Okay, so this is the today's lead code PTD. Okay, let's read the problem statement first. Okay, so the problem statement is given a row cross calls Vandy matrix filled with zeros and ones. Okay, find the largest rectangle containing only ones and return its area. Okay, so we have given an input matrix of row cross calls contains only zeros and one, and we have to return the maximum rectangle, okay, containing only ones. Okay, so we have to return only that rectangle which contains only ones. Okay, and that rectangle area must be maximum. Okay, so let's understand the problem using the given example. Okay, so this is the first lead code example of that problem. Okay, let's learn. Okay, let's understand. Okay. We have to find the largest rectangle that contains only ones. Okay, so as we see here, this is the largest rectangle. This, you can see that this is the largest rectangle which contains only ones and the largest rectangle. Okay, मतलब largest area है इसका. Okay, so the largest area is 0. मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पर. Okay, so this is the largest area. Okay, look here, this is 2, height is 2 and the breadth is 3. Okay, so the height becomes 6. Sorry, area becomes 6. How? 2 multiplied by 3 becomes 6. Okay, because height is 2 and the breadth is 6. Okay, so the area of rectangle is 6 and this is the maximum area. Okay, so now the problem means we have to, how we can approach the problem, means how we can solve it, how beginners approach. Okay, so have you ever solved the problem, lead code problem number 84? 84 is the problem which is the largest rectangle histogram. This is the problem largest rectangle in histogram. Okay, so this is the problem is this problem is the in this problem is contained inside that problem. Okay, how I will explain you that. So for solving this problem, you have to solve the largest rectangle in histogram problem. How this problem is related to that problem, I will explain you. Okay, so यहाँ पर प्री रिक्वेस्ट आपकी यही है कि आपको ये प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करनी है, 84 वाली प्रॉब्लम, लीड कोड नंबर 84. ओके, सो क्या है इस प्रॉब्लम में, जैसे आप यहाँ देखिए, लाइक दिस इज द फर्स्ट रो. ओके, दिस इज द फर्स्ट रो. ओके, एंड वी हैव टू टेक दैट rectangle which contains only one. Okay, so have you the here, look here, this is the one. Okay, so can I tell you, can I see that here and here? Okay, and this is 0. ये तो आपको लेना ही नहीं है, ये तो आपको लेना ही नहीं है, you don't take that. Okay, so you can see that I can consider it as var. This also I can consider it as var. Okay, var means like that, histogram bar, like this. Okay, so here this one and this one, only this one and this one, and I am taking thus only one, first row. Okay, so this is a 1 and this is a 1, height is 1 and this is also height 1. So the maximum largest rectangle in that histogram is only 1. How? This is the 1, length is 1 and breadth is 1. This is also length is 1, breadth is 1. So largest rectangle is 1. Okay, largest area of rectangle is 1. Okay, but if I take एक मिनट यहाँ पर वेट. ओके, हाँ, यहाँ पर मैं इस वाले एग्जांपल से आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ कि मैंने क्यों ही इसको
एक हिस्टोग्राम माना, ठीक है। लाइक दिस इज द var, ओके, दिस इज लेंथ ऑफ 1, दिस इज लेंथ ऑफ 2, दिस इज लेंथ ऑफ 1 एंड दिस इज ऑल्सो लेंथ ऑफ 3. So if I take the if I consider this first row as var, okay, not containing जीरो, जीरो को आपने नहीं लिया, जीरो का मतलब जीरो हाइट है, ओके, वन मतलब वन हाइट है, वन मतलब वन हाइट है, तो ओके, सो मतलब मैंने इसको क्या कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने बार में कन्वर्ट कर दिया, ओके, एक रो को फ्रॉम टॉप टू दैट रो, ओके, जो भी आपको रो, जैसे यहाँ पर मैं जीरो मान लेती हूँ, ठीक है, अभी मैं जीरो से 1 की रो को ले रही हूँ, ठीक है, अगर मैं जीरो से 2 की रो को लूँ तो अलग मेरा सीन होगा, अगर मैं जीरो से 3 की रो लूँ तो अलग मेरी हाइट होगी, अगर मैं जीरो से 4 की रो लूँ, ठीक है, 4 तक की हाइट लूँ तो मेरी अलग होगी रो, ठीक है। अगर मैं जीरो से लेके 1 तक की लेती हूँ तो 1 और 1 सिर्फ हाइट्स होंगी मेरी बार की। इफ़ आई टेक रो फ्रॉम 0 to 2, 0 to 2, 0 to 2, देन मेरी हाइट क्या होगी, 2 होगी, 2 होगी, 1 होगी, 3 होगी, 1 हो 2 होगी एंड 2 होगी। बट इफ़ आई टेक द हाइट फ्रॉम 0 to 3, ओके, तो मेरी हाइट्स क्या होंगी, 3 होगी, सॉरी 0 to 3 मैं ले चुकी हूँ, हाँ 0 से 4, अगर मैं 0 से 4 होगी तो क्या होगी, मेरी हाइट 4 होगी। एंड देखिए यहाँ पर 0 है, 1 है, फिर 0 आ गया, नहीं ये मुझे नहीं लेना है। अगर मेरा फिर से 0 आ गया तो मुझे नहीं काउंट करना, क्योंकि ये तो हाइट को 0 बना रहा है, ये बेस हमारा है, ये बेस में हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, बेस में हमारा 0 हमें नहीं लेना है, ठीक है, तो इसीलिए इसकी हाइट क्या होगी, 0 होगी, ओके। यहाँ पर हमारा 1 है, 3 3 हो गया, ठीक है, फिर से हमारा 0 हो गया, और ये हमारा बेस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, बेस है, ठीक है, और इसमें क्या बोला गया कि हमारा 0 कंटेन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम 0 को नहीं लेंगे, ठीक है, मतलब अगर 0 आ गया तो, अगर बीच में 0 आ गया तो हमें लेना ही नहीं है उस बार को, ठीक है, तो इसका भी हाइट 0 हो जाएगा, ठीक है, सिमिलर टू दैट, ओके, 0 है, ऊपर 0 कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 1 है, लगातार 1 आता जाए बेस तक, ये हमारा बेस है, ठीक है, क्योंकि हम 0 से 4 अभी ले रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हुआ, बेस हो गया, तो 1 + 1 = 3, तो हाइट हमारी क्या होगी, बार की 3 होगी। सिमिलर है, 0 है, 1 है, फिर 0 आ गया, नहीं बीच में हमें 0 नहीं लाना है, या तो कंटिन्यूसली 1 आता रहे, ठीक है, क्योंकि हमें कंटेनिंग 1 ही वाला रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है, दैट्स वाई आई एम टेकिंग द बार ऑफ ओनली कंटेन्स 1, ओके। So this is the idea why I am taking the row from 0 to particular row, मतलब from 0 to the particular row, मैं क्यों उसको एज अ बार क्यों से मान रही हूँ, क्योंकि मुझे रेक्टेंगल निकालना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं ऐसे निकालूंगी, तो वो हिस्टोग्राम में निकाला था ना, हिस्टोग्राम में उसने सिर्फ एक हमें दिया था, एक 1D एरे दिया था, लेकिन इसने हमें 2D एरे दे दिया ना, 2D एरे दिया, तो 2D एरे बनाने के लिए, 2D एरे में हमें बाहर निकालने के लिए हमें ऊपर से लेकर नीचे तक की देखना पड़ेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक की, यानी कॉलम वाइज हमें क्या करना पड़ेगा, आइटरेट करना पड़ेगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप, और जो भी आप बॉटम जो भी बेस मान रहे हैं, फर्स्ट रो को बेस मान रहे हैं, सेकेंड रो को बेस मान रहे हैं, थर्ड रो को बेस मान रहे हैं, वो आपके अकॉर्डिंग टू दैट आपको जो हिस्टोग्राम की बार की जो लेंथ है उसको आपको डिफाइन कर लेना है, बस एज सिंपल एज दैट, ओके, बस और इसमें कुछ नहीं, बस हिस्टोग्राम का जो लॉजिक था ना वो इसमें डालना है, ठीक है, हिस्टोग्राम का लॉजिक आपको डालना है और उससे आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो दिस इज़ द लॉजिक टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या लिया है, मैंने फर्स्ट रो लिया है, ठीक है, अगर मैं सेकेंड रो तक की जाऊँगी तो मेरी दूसरा एरे हो जाएगा, ठीक है, तो ओवरऑल क्या है, इस 2D एरे को हमें 1D में कन्वर्ट करना है, एंड 1D एरे में कन्वर्ट हो गए तो वो हमारी क्या बन जाएगी, हाइट्स बन जाएगी एक सिंगल बार की, ठीक है, हाइट बन जाएंगी लाइक दैट, ओके। और इसी रो को जो मेरी बार बनेगी, जो मेरी हाइट्स बनेगी, उसी को मैं इसमें भेज दूंगी हिस्टोग्राम में, और ये हिस्टोग्राम तो मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, तो ये मुझे रिटर्न करके क्या दे देगा, एरिया निकल देगा, ठीक है, मैक्स एरिया देगा, ठीक है, ओके। सो तो ये मैंने ओवर ही बता दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट मैं इसको ब्रीफ में आपको समझाऊंगी, चिंता मत करिए, मैं इसको आपको ब्रीफ में समझाऊंगी, डोंट वरी, आई एम एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम इनटू ब्रीफ, ओके, सॉरी ब्रीफ करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन यूजिंग अनदर प्रॉब्लम मैंने क्या बताया, हिस्टोग्राम वाली प्रॉब्लम, जो कि पहले से सॉल्व कर रखी है, रिलेटेड टू प्रॉब्लम नंबर 84, ओके। तो कैसे मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है, तो मैंने कहा ये मेरा 0 है, ठीक है, अभी मैं कहाँ तक की जा रही हूँ, अभी मैं रो नंबर 1 तक जा रही हूँ, सॉरी रो नंबर 2 तक जा रही हूँ, ठीक है, नहीं ये अगर मैंने 0 से स्टार्ट किया ना, तो ये मेरा 1 है और ये मेरी 2 है, ठीक है, तो रो नंबर 2 तक की जा रही हूँ, ठीक है, ये मेरा 0 है, ये 2 है, तो अब मैंने हाइट कहाँ से ले रही हूँ, 0 से लेकर 2 तक, अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो 0 से लेकर 1 तक की जा रही हूँ, ठीक है, मतलब वैसे इन सॉल्व करने के पर्पज से, बट यहाँ पे मैं 0 ये ऊपर वाला टॉप मैंने 0 ले रही हूँ,
ये 1 लिया मैंने, ये मैंने 2 लिया है, ठीक है। तो मैं 0 से लेकर 2 तक की जा रही हूँ, तो मेरी हाइट क्या होगी, 2 है, ठीक है। 2 1 + 1 = 2, ओके। टॉप टू बॉटम 1 + 1 = 2, 0 + 0 = 0, ठीक है। 1 + 1 = 2, 0 + 1 = 1 एंड 0 + 1 = 1, ओके। तो ये मैंने स्टोर कर ली, ये मेरी हाइट मैंने बार्स की जो हाइट है मेरी वो मैंने स्टोर कर ली एक सिंगल 1D एरे में, ठीक है। और ये 1D एरे मेरा क्या ये मेरा 1D एरे क्या है, ये है मेरा हाइट्स, HEIGHT, हाइट्स ऑफ द बार्स, ओके। बस सिंपल यही है। वैसे मैंने कन्वर्ट कर लिया अब इस हाइट ऑफ द बार को। अब इस बार को भी मैं कैसे करूँगी, इसको बार को मुझे अब क्या करना है ना, सेंड दिस हाइट टू द हिस्टोग्राम टू द फंक्शन, ओके, टू द हिस्टोग्राम फंक्शन, ओके। मतलब जो मैंने हिस्टोग्राम फंक्शन बना रखा है ना, जो मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया निकालेगा उसमें मुझे सेंड कर देना है, ओके। तो ये तो मैंने 0 से लेकर 2 तक की बार्स को निकालना है, ओके, हाइट्स ऑफ बार्स को निकालना है, ठीक है। अगर मैं 0 से लेकर 3 तक की हाइट ऑफ बार को निकालूँ, ये 0 से लेकर 0 ये है, ठीक है, 1, ओके, 2 ये था मेरा, 3 ये है, ठीक है। तो अगर मैं 0 से लेकर 3 तक की हाइट्स को निकालूँ, ओके, जो ये मेरा सिंगल क्या है, ये पूरा मेरा बार है, ओके। एक मेरे बार ये है, 1 बार, एक मेरा बार ये है, एक मेरा बार ये, ओके। तो इन सब की बार की हाइट को मुझे निकालना है, ठीक है। हाइट की इन सब की बार की, ये मेरा एक बार है, एक मेरा बार ये है, ऐसे बार सारे हैं, ओके। मतलब हमें क्या करना है, कॉलम से लेकर रो तक की ट्रैवर्स करना है टू फाइंड द हाइट, ओके, हाइट को निकालने के लिए, ओके। तो ये मेरी फर्स्ट हाइट क्या है, फर्स्ट बार की हाइट मेरी 3 है, सेकेंड बार की हाइट मेरी 1 है, थर्ड बार की हाइट मेरी 3 है, एंड द फोर्थ इज़ 1 एंड द 2, ओके। सो ये मैंने हाइट्स निकाली सिमिलर टू दैट प्रीवियस, ओके। मैं क्या करूँगी, इस हाइट को भी मैं सेंड कर दूँगी किसको, हिस्टोग्राम में, ठीक है। अब मेरा यहाँ से जो क्या आएगा, एरिया आएगा, वो मैं मैक्स एरिया से कंपेयर कर लूँगी, ओके। और यहाँ से मेरा जो एरिया आएगा वो आएगा मेरा 6, कैसे 6 आएगा, ठीक है, मैं दिखाती हूँ कैसे 6 आएगा। ये मेरी 3 है, ठीक है, ये मेरी इसकी हाइट 3 है, 1 है, 3 है, 1 है, 2 है। ये जो है ना, ये रो, ये जो मेरा एरिया है ना, सॉरी, ये जो रेक्टेंगल है वो मुझे मैक्स एरिया दे देगा, दैट इज 6, ओके। अगर मैं टॉप से लेके 0 मतलब फ्रॉम 0 टू, अगर मैं अब पूरा बॉटम तक के जाऊँ, ठीक है, बॉटम तक की हाइट निकालूँ किसकी, बार्स की, ठीक है। तो अब मैं 4 तक की निकाल रही हूँ, 0 से लेके 4 तक की हाइट निकाल रही हूँ। तो अब मेरी क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है, 1 में मतलब सॉरी 4 आएगी, ओके, 4 ले ली। अब मेरा यहाँ पर क्या कैच है, एक 0 + 0 = 0, ओके। तो 0 तो मुझे लेना ही नहीं है, इसको तो मुझे लेना ही नहीं है, 0 तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि डोंट टेक दैट रेक्टेंगल विच कंटेन्स 0, ओके। सो वी डोंट हैव टू टेक दैट रेक्टेंगल, ओके। तो 0 इसको तो लेना ही नहीं, यहाँ से तो काउंट ही नहीं करने। अब 1, ठीक है, 1 है, लेकिन फिर से 0 आ गया तो इसको लेना ही नहीं, तो इसकी पूरी हाइट क्या होगी मेरी इस बार की, 0 होगी, ओके। फ्रॉम हेयर 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 3, सॉरी 2 + 1 = 3, ओके। बट फिर से मेरे पास 0 आ गया, बट फिर से मुझे नहीं लेना, क्योंकि 0 मुझे उस रेक्टेंगल का पार्ट नहीं बनाना है, ओके। दैट्स वाई आई एम टेकिंग द हाइट ऑफ दैट बार इज 0, ओके। नाउ फर्दर 1 + 1 = 2 एंड 2 + 1 = 3, ओके। अगेन 0 आ गया, तो फिर उसको मुझे नहीं लेना है, इग्नोर कर देना है। बट ऊपर 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन बाद में हमारा 1 + 1 आता है ना, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम तक के अगर बीच में कंटिन्यूसली हमारा बना है तो वो उसे मुझे हाइट को कंसिडर करना है, ठीक है। तो सिंपली ये भी मेरा हाइट आ गया, ठीक है, हाइट एरे बन गया। अब इसको ही मुझे हिस्टोग्राम में भेज देना है, हिस्टोग्राम फंक्शन में भेज देना है। जैसे ये मैं क्या निकालूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में ये हाइट्स ही दी हैं, उसी हाइट्स को मुझे यहाँ पर इस 2D एरे से उसी हाइट को मुझे 1D एरे में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। जो मुझे बार्स दी गई ना 1D एरे में कन्वर्ट कर ये हाइट, और यही हाइट मुझे इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन है लार्जेस्ट रेक्टेंगल एरिया, इसी फंक्शन में मुझे भेज देनी है, बस वहाँ से मुझे एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा तो ये काम है कि जो मैंने हाइट्स निकाली उनको मुझे स्टोर कैसे करना है। अब बारी बारी तो मैं नहीं जाऊँगी ना कि निकालूंगी 1 + 1 मिल करके, तो ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा, ठीक है। तो मेन काम है हाउ टू स्टोर दैट हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल की हाइट को कैसे स्टोर करना है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर हमारी आती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या देख रही हूँ, ठीक है,
कैसे स्टोर करना है यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 1 था, ठीक है, फिर मैंने 1 में क्या ऐड किया, 1 फिर से ऐड किया, 2 हो गया, फिर मैंने 2 में ऐड किया गया 1 ऐड किया। तो ये कैसे लग रहा है, मतलब पहले 1 था, फिर मैंने 1 में फिर मैं 1 में ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया 2 हो गया, फिर 2 में फिर से मैंने 1 ऐड किया, फिर ये 3 हो गया। तो इट्स लाइक प्रीफिक्स सम। ओके, फाइंडिंग द प्रीफिक्स सम फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, मीन्स हम क्या आइटरेट कर रहे हैं कॉलम से, सॉरी आइटरेट कर रहे हैं फ्रॉम कॉलम बाय आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है, और रो में जाके हम सारी रो के जो भी जिस पर्टिकुलर कॉलम में हम सारे रो में आइटरेट कर रहे हैं और प्रीफिक्स सम निकालते जा रहे हैं और प्रीफिक्स सम में ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, करंट वैल्यू को प्रीफिक्स सम में ऐड करते जा रहे हैं, तो वो हमारे क्या हाइट दे रहा है। तो इट्स लाइक अ फाइंडिंग द प्रीफिक्स सम। तो लाइक हियर यू कैन सी हियर, लाइक मैंने ये फर्स्ट रो को मैंने एक बार प्रीफिक्स सम मान लिया, ठीक है, फर्स्ट रो में 1, 0, 1, 0, ठीक है, और मैंने सेकेंड रो को करंट मान लिया और सेकेंड रो को मैं ऐड करते जा रही हूँ, ठीक है, तो 1 + 1 = 2 हो गया, ठीक है, एंड 0 + 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, एंड 1 तो मैंने प्रीफिक्स सम निकाल लिया, 1 में फिर से मैंने ऐड 1 कर दिया तो 2 हो गया, 0 में फिर से 1 ऐड कर दिया तो 1, ठीक है, 0, 1, 1। तो ये लाइक फाइंडिंग द प्रीफिक्स सम। ओके, तो हम क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे इस बारी कॉलम वाइज, ठीक है, नीचे जाएंगे टॉप टू बॉटम, यानी कॉलम वाइज हम आइटरेट करेंगे। तो एक क्या करेंगे, एक 2D ग्रिड बनानी पड़ेगी अलग से हमको, किस लिए, प्रीफिक्स सम स्टोर करने के लिए, टू सेव द मतलब स्टोर द प्रीफिक्स सम, ठीक है। प्रीफिक्स सम को हमें स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 2D ग्रिड बना लेंगे, ठीक है, फिर 2D ग्रिड में प्रीफिक्स सम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। लाइक हम आइटरेट करेंगे फ्रॉम i = 0 से j = 0 से, ठीक है, और क्या करेंगे, एक सम का वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, और स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो स्टार्टिंग में 1 ही, सम में 1 होगा, ठीक है, सम हमारा 0 है अभी, ठीक है, फिर 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, फिर 0, उसके बाद फिर 0, ठीक है। तो ये तो मेरा मुझे रो वाइज नहीं कॉलम वाइज आइटरेट करना है, गलत, कॉलम वाइज आइटरेट करना है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ठीक है, अभी मैं कॉलम = 0 पे हूँ, i = 0 पे 1 हो गया, अब i = 1 लेकिन कॉलम हमारा 0 ही है, ऊपर हमारा 1 था, अभी मेरा करंट क्या है 1 है, प्रीफिक्स हमारा सम यहाँ पे, प्रीफिक्स सम यहाँ पे करंट प्रीफिक्स सम है जो मैं यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ, ठीक है, 1 एंड 1 + 1 में हमारा क्या होगा 2, तो हमारा सम क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब 2 हो गया, अब फिर से हमारा 1 आया तो अब हमारा क्या हो गया 3, मतलब पहले सम को ऑपरेट करूँगी फिर बाद में वहाँ पे ऐड करेंगे, फिर 3 + 1 क्या हो गया 4, तो यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे 4, ठीक है। अब कॉलम = 1 पे आएंगे, ठीक है, ये तो हमारी रो ई वाला कॉलम कंप्लीट हो गया, अब कॉलम 1 पे आएंगे, ठीक है। अभी करंट हमारा सम क्या है 0, ठीक है, तो 0 स्टोर कर देंगे, फिर से हमारा सम 0 ही रहेगा, अभी वैल्यू 0 है, ठीक है, फिर हमारा 1 आएंगे तो 1 मैंने स्टोर कर दिया, लेकिन फिर से हमारा क्या आ गया, फिर से हमारा 0 है तो सम हमारा फिर से 0 ही हो जाएगा, ठीक है। जब अगर वैल्यू 0 जाएगा तो सम को भी 0 ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉलम नंबर 2 में अभी हमारा सम क्या है, सम हमारा 0 है लेकिन मैट्रिक्स में वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 स्टोर कर देंगे और सम यहाँ पर 1 कर देंगे, ठीक है। फिर से हमारा 1 आया तो सम क्या जाएगा हमारा 2, ठीक है, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन अब हमारा सम क्या जाएगा 3, ओके, वैल्यू हमारी ऐड हो जाएगी ना मैट्रिक्स की जो इस करंट वैल्यू पे है ना मैट्रिक्स, सॉरी इस करंट आई और जे पे सेल पे जो वैल्यू है वो हमारी सम में ऐड हो जाएगी और सम की वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है 3, एंड अगेन 3 + 0 इज़ यहाँ पर 0 ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जब हमारी 0 आ जाएगी ना तो हमें 0 ही स्टोर करना है, ओके। नाउ अगेन कॉलम 3 करंट 0 है, ठीक है, 0 एंड 0 + 1 = 1, ओके, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 + 1 = 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, सम में 2 आ जाएगा और सम की वैल्यू जो होगी उठा के वो हम स्टोर कर देंगे किसमें, अपने ग्रिड में, ठीक है, प्रीफिक्स सम में, ठीक है। 2 + 1 = 3, तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा 3 और फिर से हमारा सम की वैल्यू 0 जाएगी क्योंकि अब नया कॉलम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो 0 है तो 0 एंड 0 + 1 = 0, 1, ठीक है, 1 आ जाएगा एंड 1 + 1 = 2, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 2, बट अगेन जो हमारा जो लास्ट वाला सेल है ना उसमें हमारा 0 तो 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 0 है ना तो वो हाइट जो 0 कर देगा ना, तो हमें 0 नहीं लेनी है, बोला ना कंटेन रेक्टेंगल है उसमें 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये हमारी प्रीफिक्स सम बनाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक हिस्टोग्राम फंक्शन लिखना है, ठीक है, हिस्टोग्राम फंक्शन हमें लिख लेना है और हिस्टोग्राम फंक्शन में अब जो मेरे ये तो प्रीफिक्स सम क्या स्टोर कर रहा है, ये मेरा प्रीफिक्स सम स्टोर कर रहा है ये हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, हाइट ऑफ द बार्स, ठीक है, ये वो स्टोर कर रहा है, ठीक है, इस बार्स को ये वो स्टोर कर रहा है, ठीक है, हाइट ऑफ द बार को स्टोर कर रहा है और इसी हाइट को मुझे उठा कर किस में भेज देना है,
हिस्टोग्राम के फंक्शन में पास कर देना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स ऑफ 0 को सिमिलर मैट्रिक्स ऑफ प्रीफिक्स सम ऑफ 1 को सिमिलर प्रीफिक्स सम ऑफ 2 को। ये क्या है, मेरा एरे है, 1D एरे, इसको मुझे क्या इसमें पास कर देना है, इसको मुझे हिस्टोग्राम के फंक्शन में पास कर देना है। आइटरेट करते जाएंगे, ठीक है, 0 से लेके रो तक की सारी रो तक की रो को आइटरेट करेंगे और फिर फिक्स सम ऑफ 0 प्रीफिक्स सम ऑफ 1 ऐसे पास कर देंगे इसका हिस्टोग्राम फंक्शन में, ठीक है। अब मेरा मेन काम है कि हिस्टोग्राम फंक्शन में कैसे लिखना है, ठीक है। अगर आपने पहले से हिस्टोग्राम फंक्शन लिख रखा है तो कोई बात, तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं लिख रखा है तो मैं बताऊँगी आपको। तो अब हम लोग हिस्टोग्राम फंक्शन लिखेंगे जिसमें ये हमारे बार्स की हाइट देंगे, एरे देंगे हम लोग बार्स की हाइट का, और उसमें हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, ओके। तो कैसे इसको लिखना है, तो उसको लिखने के लिए पहले मुझे समझाना पड़ेगा। अगर आपको पहले से पता है तो आप जाकर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं वीडियो जिसमें मैं बताऊंगी आपको कैसे हिस्टोग्राम का फंक्शन आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मैंने यही हिस्टोग्राम फंक्शन का जो एक एग्जाम्पल वो ले लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए मैं एक चीज़ समझाती हूँ आपको। जैसे ये है हमारा, ये मेरी बार है, और इसमें क्या है, जैसे ये जो हमारा जैसे मैंने लिया है 2, ओके। जैसे ये बार हमारी बार की हाइट है 2, ओके। तो इस बार की हाइट का ये रेक्टेंगल कहाँ तक की बन रहा है, ये रेक्टेंगल मेरा यहाँ से यहाँ तक की बन रहा है, ओके। रेक्टेंगल फॉर्म फ्रॉम देयर टू हियर, ओके। सो वी नो द हाइट, ओके। हाइट तो हमको पता है, ओके, वी नो हाइट, बट वी डोंट नो द ब्रेथ, मतलब कहाँ तक की ये जो 2 है, ये जो 2 की हाइट है वो कहाँ तक की एक्सपेंड हो सकती है, ओके। हमें आगे भी देखना है और पीछे भी देखना है, ठीक है। हमको ये चेक करना है कि ये जो मेरी हाइट है, सॉरी हाइट तो मुझको पता है, ये जो मेरी ब्रेथ है ये मेरी ब्रेथ है वो यहाँ से यहाँ तक की कहाँ तक की एक्सपेंड हो सकती है, और यहाँ से यहाँ तक की कहाँ तक की एक्सपेंड हो सकती है। तो ये सिंपली हम एक चीज़ से निकाल सकते हैं, अगर आपको पता हो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के बारे में और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, वो कहाँ तक जा सकता है, अगर 2 से बड़ी कोई बार होगी तो वहाँ तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पर भी अगर 2 से कोई बड़ी बार होगी इसके पीछे, तो वहाँ तक की एक्सपेंड हो जाएगा। लेकिन अगर इस 2 के अगर यहाँ इधर साइड इसके लेफ्ट साइड, मतलब इसके राइट साइड बोलो या लेफ्ट साइड, ओके, अगर इसके राइट साइड यहाँ पर अगर कोई छोटी बार हुई तो वहाँ तक एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। तो हमें 2 के आगे यानी 2 के नेक्स्ट में ऐसा एक स्मॉलर एलिमेंट निकालना होगा जहाँ तक कि ये जो हमारा ये जो 2 की हाइट है ना, 2 की बार है, वहाँ तक ही वो एक्सपेंड हो जाएगा। लेकिन अगर इसके आगे कोई भी बार होगी वहाँ तक भी एक्सपेंड नहीं होगा, यानी इसका 2 से इधर साइड 2 के आगे कोई ऐसा स्मॉलर एलिमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। स्मॉलर एलिमेंट निकालना पड़ेगा, मतलब उसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इंडेक्स निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक कि वो यानी इसके आगे जो हमारा 2 है वो इसके आगे हमारा एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, तो हमें ये इंडेक्स निकालनी पड़ेगी। और ये इंडेक्स हमारी क्या होगी, टोटल लेंथ होगी। क्या है टोटल लेंथ हमारी, क्या है, सॉरी टोटल बिड्थ होगी। टोटल बिड्थ हमारी क्या है 6, यानी इसकी जो यहाँ तक कि जब कोई नहीं होगा एलिमेंट तो हम क्या यहाँ पे स्टोर कर देंगे, -1 स्टोर कर देंगे। सिर्फ 2 के लिए, सिर्फ मैंने 2 के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट जो स्मॉलर एलिमेंट होगा वो -1 ही होगा, क्योंकि इसके इधर तो कुछ है ही नहीं, तो -1, ठीक है। तो इंडेक्स में मैं क्या स्टोर कर रही हूँ, यहाँ पर मैं स्टोर करूँगी इंडेक्स, ना कि एलिमेंट। इंडेक्स स्टोर करेंगे, ठीक है, इंडेक्स, क्योंकि मुझे इंडेक्स से ही मतलब है, क्योंकि इंडेक्स निकाल लेंगे तो हम बिड्थ निकाल लेंगे, ठीक है, बिड्थ निकाल लेंगे, ओके। तो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स निकालनी पड़ेगी हमको यहाँ पर, ओके। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कि जाएंगे, -1 होगी तो -1 को हम 6 लिख देंगे, ठीक है। अगर क्योंकि इधर साइड कोई इंडेक्स मिलेगी नहीं, तो हम क्या उसको कन्वर्ट कर देंगे, उसको 6 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये जब हम कोड लिखेंगे तो वहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब अगर हम प्रीवियस में भी चाहिए ना मुझे एलिमेंट, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कि कहाँ तक की ये जो 2 है, ये 2 बार है, वो कहाँ तक की एक्सपेंड हो सकती है। तो ये सिर्फ 2 बार है जो 5 तक की एक्सपेंड होगी, इस बार तक की एक्सपेंड हो सकती है, इसके आगे नहीं जा सकती है। तो इसके आगे ज़्यादा जा नहीं सकती, तो इसके आगे तो हमें क्या, ये जो बार है ना, इसकी हमें इंडेक्स चाहिए होगी, क्योंकि यही तो है ना इसके लिए स्मॉलर एलिमेंट बनी तो है ना, इसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, ठीक है। तो इसके लिए इसकी इंडेक्स क्या है हमारी, इसकी इंडेक्स हमारी 1 है। तो हम इसकी इंडेक्स को हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे किसके, प्रीवियस एलिमेंट ऑफ 2 के प्रीवियस एलिमेंट में हम 1 स्टोर कर देंगे, क्या है इसकी इंडेक्स है, ठीक है। सिमिलर फॉर 3, यहाँ पर मैं 3 के लिए देखती हूँ, ठीक है। 3 के लिए कोई भी 3 के लिए देखेंगे पीछे जो आगे बार है, ठीक है। 3 के लिए 1 मिनट, 3 के लिए इधर देखेंगे, 1 मिनट, ओ माय गॉड, ये हाँ 3 के लिए मैं इधर इसके पीछे देखूंगी, इसके आगे देखूंगी कोई भी बार नहीं है, तो हम क्या स्टोर कर देंगे -1, क्योंकि कोई बार है ही नहीं, तो -1 स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट में अब प्रीवियस में देखेंगे, प्रीवियस में इससे छोटी बार कौन सी है, 2 है, ठीक है। और 2 का इंडेक्स क्या है हमारा
टू की इंडेक्स ये क्या है हमारी 4 है, ठीक है। तो हम क्या स्टोर कर देंगे यहाँ पर 4 स्टोर कर देंगे, ठीक है, प्रीवियस में, ठीक है। अब 3, अब 2 का तो मैंने पहले कर दिया था, अब 6 पे आया, ठीक है। 6 की करने के लिए 6 को देखो, 6 तो एकदम पूरी टॉप है, तो ना इसके इधर कोई है ना इसके इधर कोई है, ठीक है। तो इसके इधर इसके 6 का स्मॉलर एलिमेंट कौन है, जस्ट इसके पीछे वाला कौन है, 2 है, और उसकी इंडेक्स क्या है 4 है, किसकी 6 की, कि कौन सा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है 4। ये मैंने इंडेक्स स्टोर कर रही हूँ, मैं एलिमेंट नहीं, पहले बता दें मैंने एलिमेंट मुझे चाहिए ही नहीं ना, मुझे इंडेक्स चाहिए। क्यों इंडेक्स चाहिए मैं अभी बताऊँगी, ठीक है, पहले मैं स्टोर कर लेती हूँ, ठीक है। और 6 के इधर का है कौन सा सबसे इससे छोटा स्मॉलर एलिमेंट है 5 है प्रीवियस में, और उसकी इंडेक्स क्या है 3 है, ठीक है। इसकी इंडेक्स क्या है 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 स्टोर कर दूँगी, ठीक है। अब ये आप आगे कर लीजिएगा, ठीक है, कैसे स्टोर करना है, ठीक है। लेकिन मैं आप बता देती हूँ कि इंडेक्स क्यों स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब मैंने 2 कर दी, 2 की मैंने इंडेक्स स्टोर कर ली, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट इसकी है 1 और उसकी इंडेक्स क्या है 1, ठीक है। और 2 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कोई भी नहीं है, कोई भी बार नहीं है जो इससे बड़ी हो, तो इससे छोटी हो, तो मैं क्या स्टोर कर दिया मैंने -1, ठीक है। तो जब मैं इसकी बिड्थ निकालूंगी, मुझे इसकी बिड्थ चाहिए, ठीक है, इसकी ये बिड्थ चाहिए। तो बिड्थ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये पूरी टोटल बिड्थ है मेरी 6 है, अभी मेरी जो टोटल बिड्थ है वो मेरी 6 है, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, मुझे कितनी चाहिए, मुझे इतनी चाहिए, ठीक है। मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, मुझे इस वाले पार्ट की बिड्थ चाहिए, ये वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की बिड्थ चाहिए। तो इस वाले पार्ट की बिड्थ निकालने के लिए मुझे इसकी बिड्थ पता होनी चाहिए, और टोटल बिड्थ तो मुझे पता है 6 है। टोटल बिड्थ इसकी क्या है, जैसे यहाँ पे इसका पीछे वाला जो पार्ट है, सॉरी इसके जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है उसकी इंडेक्स तो मुझे पता, वो तो है ही नहीं, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 2 का तो है ही नहीं, तो -1 हो गए, तो -1 होगा, वहाँ पर मैं क्या कन्वर्ट कर लूँगी उसको मैं कन्वर्ट कर लूँगी 6 में, जहाँ पर भी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट में अगर -1 आया तो उसको मैं 6 में कन्वर्ट कर लूँगी, क्योंकि उसमें फिर मैं पूरी बिड्थ ले लूँगी ना, फिर लास्ट तक ही गया ना, और 6 माइनस करूँगी, माइनस करना मुझे ये वाली बिड्थ, ये वाली निकालनी ना मुझे। तो देखिए मैं बताती हूँ, एक मिनट, मुझे ये वाली निकालनी है ना बिड्थ, ये वाली, तो मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से माइनस करने के लिए मुझे यहाँ तक की इंडेक्स चाहिए होगी, यहाँ तक की इंडेक्स मेरी क्या है 1 है, जो मैंने स्टोर कर रखी है इसमें प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट में। प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट 2 का क्या है 1 है, ठीक है, और 1 की इंडेक्स क्या है 1 ही है, इसीलिए यहाँ तक की मुझे तो पता चल गई है क्या है बिड्थ 1 है, ठीक है। 6 - 1 कर दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने की आ गई 5 आ गई, ओके। 5 इज़ द विड्थ फॉर दिस, बट 5 नहीं है, मुझे 4 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा -1 और करना पड़ेगा, क्या करना -1, एक बार और -1 करना पड़ेगा। तो अब मेरी कितनी आ गई विड्थ 4 आ गई, और 4 ही मेरी विड्थ है किसके लिए, इस 2 हाइट की बार के लिए। 2 हाइट की बार यहाँ तक की 4 तक की जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, कहाँ तक की 4 तक की एक्सपेंड हुआ है, ये 4 तक की, तो इसकी विड्थ कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई 4 विड्थ हो गई, और 4 विड्थ पता चल गई, ये हाइट तो मुझे पता ही, तो कितना हो गया इसका एरिया 8, ओके, वो 8 एरिया हो गया, ठीक है। यानी ये 1 है जो मेरा यहाँ तक की, इसके यहाँ से यहाँ तक की मुझे चाहिए था, ये 1 इसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है, प्रीवियस, और 2 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट तो कोई है नहीं, तो इसीलिए मैंने 6 ले लिया है, इसका क्या बिट्स ले लिए 6 ले लिए, टोटल बिट्स ले लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे मुझे बिट्स निकाल लेंगे, बस बिट्स कहाँ से देगा, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट से, ठीक है, ठीक है। तो बस ये तो हो गया, ये हिस्टोग्राम फंक्शन का ऐसे मैंने हिस्टोग्राम फंक्शन को मैंने पहले से ही लिख रखा है आगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसका कोड दिखाती हूँ, मैं इसका कोड दिखाती हूँ कैसे लिखते हैं नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट में मैं इंडेक्स स्टोर कर रही हूँ, दोनों में इंडेक्स स्टोर करने हैं, ठीक है, क्योंकि मैं वैल्यूज तो मतलब है नहीं, मुझे इंडेक्स से मतलब है ना, इंडेक्स से मतलब इंडेक्स ही तो चाहिए ना। अगर मैंने यहाँ तक की इंडेक्स निकाल ली है और यहाँ तक की इंडेक्स निकाल ली है, ठीक है, इसके आगे की, इसके पीछे का, इसके आगे का, मतलब इतनी निकालने के लिए ना मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा और इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और -1 भी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ये भी काउंट हो रही है ना, इस वजह से, ठीक है। तो अब मैं इसका कोड दिखाती हूँ डायरेक्ट, मैंने इसका कोड पहले से लिख रखा है इसका हिस्टोग्राम फंक्शन का, ठीक है। तो हिस्टोग्राम फंक्शन का कोड मैं दिखाती हूँ आपको, हिस्टोग्राम फंक्शन का कोड, हाँ ये देखिए, पहले मैंने क्या नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकाला है, मतलब इसका फंक्शन बनाया, तो उसके लिए पहले क्या मैंने एक स्टैक डिफाइन कर लिया, ठीक है। स्टैक में पहले से ही -1 पुश कर देंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट को मैं यहाँ से निकालूंगी ना, जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है उसको आइटरेट में पीछे से करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो पीछे से करेंगे फ्रॉम n - 1 से 0 तक की, ठीक है। और अगर
जो सेम, फिर बस सेम यही कोड, पूरा कोड होगा प्रीवियस स्मॉलर के लिए। बस क्या है, हमें आइट्रेशन करना पड़ेगा, इसका आइट्रेशन पीछे से करना पड़ेगा और इसका आइट्रेशन i = 0 से n तक करना पड़ेगा, ठीक है। और स्टैक में सबसे पहले क्या करना है, स्टैक में पहले हमें ये देखने जाना है, अगर स्टैक में इस करेंट एलिमेंट से बड़ा कोई एलिमेंट है तो बस पॉप करते जाओ, और जो लास्ट में फिर बाद में जब वाइल लूप से आप बाहर आओगे तो जो भी स्टैक के टॉप पे होगा वो उससे छोटा एलिमेंट होगा, ठीक है, तो उसे आंसर में स्टोर कर देंगे। और वो एलिमेंट नहीं, वो इंडेक्स होगी, सॉरी, क्योंकि मैं इंडेक्स स्टोर कर रही हूँ, ठीक है। और फिर इंडेक्स को ही आगे पुश भी कर देंगे जो करंट इंडेक्स है। बस सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें भी होगा, बट क्या है, हमें आइट्रेशन अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। इसमें आइट्रेशन फ्रॉम बैकवर्ड है, इसमें आइट्रेशन फ्रॉम फॉरवर्ड है, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों फंक्शन होगा, फिर इन दोनों फंक्शन को यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, पहले तो हाइट तो मुझे पता ही है, ठीक है, हाइट तो निकाल ही लेंगे। और नेक्स्ट, और ये मैंने बताया था, और नेक्स्ट ऑफ i - 1 है, मतलब जैसे 2 है ना, जैसे ये 2 है तो 2 के इसके नेक्स्ट में कोई एलिमेंट इससे छोटा मिला ही नहीं, तो हमने -1 स्टोर किया था, ठीक है। तो इस -1 को ओवरकम करने के लिए मैंने इसमें n स्टोर कर दिया बाद में, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑफ i माइनस प्रीवियस ऑफ i -1 के हमें विड्थ पता चल गई, ठीक है। और विड्थ से फिर l × b से हमने एरिया निकाल लिया। बस इतना ही करना था इस वाले हिस्टोग्राम फंक्शन में, ठीक है। अब आगे मैक्सिमल रेक्टेंगल एरिया के फंक्शन को लिखते हैं, ओके। पर जो मेन फंक्शन है इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम इंट m और n डिफाइन कर देंगे, लेंथ मैट्रिक्स डॉट लेंथ, एक मिनट, हाँ, m मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ मैट्रिक्स, ओके। और एक प्रीफिक्स सम डिफाइन करना पड़ेगा मुझे, इंट प्रीफिक्स सम, ग्रिड बनानी पड़ेगी, न्यू इंट n m, ओके। अब मुझे स्टोर कर लेना है इंट i = 0, सॉरी, मुझे कॉलम वाइज एडिट करना है ना, j = 0, j <m j++, ठीक है। इंट सम बना लेंगे एक वेरिएबल जो स्टोर करेगा मुझे प्रीफिक्स सम को, फॉर इंट i = 0, i <m i++, ओके। इफ़ हम पहले चेक कर लेंगे, अगर मेरा एक मिनट, सम पहले निकालेंगे, सम प्लस इक्वल मैट्रिक्स ऑफ i एंड j, और चेक कर लेंगे अगर मेरा जो मैट्रिक्स ऑफ i जो है ना वो अगर 0 है तो हमारा सम भी 0 ही होगा, क्योंकि मैं 0 लेना नहीं है ना। तो प्रीफिक्स सम ऑफ i = सम स्टोर कर लेंगे, एक मिनट, सम i j, ओके, सम स्टोर कर लिया। अब मेरा ये तो बन गया, प्रीफिक्स सम को मैंने पॉपुलेट कर लिया, ठीक है। प्रीफिक्स सम 2d, ओके, बना ली मैंने। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल इंट मैक्स एरिया बनाना है, = 0 स्टोर कर लेना। फिर फॉर सिंपल इंट i = 0 से लेके रो वाइज मुझे आइटरेट करना है, ठीक है। और मैक्स एरिया को अपडेट करते जाना है बाई पासिंग द प्रीफिक्स सम की रो को पास कर देना है, ठीक है। मैक्स एरिया = मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स एरिया, कॉमा क्या करना है मुझे, हाँ, कॉमा जो ये मेरा फंक्शन है इसमें मुझे जो मेरे रो है ना, प्रीफिक्स सम की रो है ना, उसको पास कर देना है, दैट इज प्रीफिक्स सम ऑफ i, ये मेरी क्या है, करंट रो है, इसको पास कर देना है, जो कि स्टोर कर रहा है ना, क्या स्टोर करना है, बार्स की हाइट को, रिटर्न कर देना है, रिटर्न मैक्स एरिया। रन करके देखते हैं कि कहाँ गलती होगी भाई, इंट ऑफ पब्लिक एक्सपेक्टेड कहाँ गलती है, पब्लिक इंट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, मैंने यहाँ से यही उड़ा दिया, इसका नाम ही उड़ा दिया, इसका नाम तो मैंने क्यों उठा दिया भाई, अब ठीक, लार्जेस्ट रेक्टेंगल एरिया, ओके, ये यहाँ पे कैसे आ गया भाई, मैक्स ऑफ i कैन नॉट, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर कैर दिया गया ना, इस कैर को पहले मुझे हटाओ, इस कैर को माइनस
0. Okay. कि इक्वल साइन लगाना है मुझे. ओके, टेस्ट केस पास हो गए. सबमिट करके देखते हैं. सबमिट हो जाएगा. ओके, सबमिटेड. Okay, I hope you understand the concept behind this problem. Okay, this problem is this problem contain the largest rectangle in histogram. Okay, ये जो 84 है ना, वो 85 के अंदर है. ठीक है, 84 को यूज़ करके ही आप 85 सॉल्व कर पाएंगे. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू सो मच.